ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਗਰੁੜ ਗੰਗਾ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਵੀ ਬਦਰੀਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਾਂਗ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਵੀ। ਕੋਹਾਂ ਦੇ ਕੋਹ ਤੁਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਧੁੱਪਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਾਲੇ ਜਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ 'ਚ ਸਾਹ ਟੁੱਟਦਾ, ਉਤਰਾਈਆਂ 'ਚ ਗੋਡੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭੋਰਾ ਅੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਕ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੰਦਰ 'ਚ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ੍ਰੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ 60-65 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਵਾਣ ਦੀ ਖੁੱਸੀ ਹੋਈ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਰ ਬਾਂਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਝੁੱਗੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵੀ। ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹਦੇ ਸੌਣ ਵਾਲੀ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕੁਝ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਬੀੜੀਆਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਹਨ, ਕੁਝ ਪਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਇਲਾਇਚੀ, ਸੁਪਾਰੀ ਤੇ ਕੱਥਾ ਚੂਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਾਨ ਬੀੜੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ 2 ਵੇਲੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਕਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਾਵੇਂ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਥਾਵੇਂ ਉਤਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਉਤਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਉਤਰੀ ਸਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਮਲੇ ਖਰੀਦਣੇ ਸੀ। ਘੜਿਆਂ, ਸੁਰਾਹੀਆਂ ਤੇ ਗਮਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਝੁੱਗੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਮਲੇ ਚੁਣ ਲਏ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਸ ਝੁੱਗੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਾਂ ਕਿ ਗਮਲੇ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਪਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਦੀ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉਰਾਂ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਗਮਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਅ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਗੁਆਂਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਜੀ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਿਆ बढ़ ਜਾਏਗਾ बिटिया, ये उम्र ही बढ़ती है और कुछ नहीं बढ़ता। वो बेचारी इससे 2 पैसे कमा लेगी तो अच्छा ही है। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਮਲੇ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਪਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਨ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ, ਇੱਕ ਮਾਚਸ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਅੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਉਚੇਚਾ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਪਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 2-3 ਪਾਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਸਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬਾਹਰ ਵੇਖਦੀ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਗਾਹਕ ਨਾ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਉਤਰ ਬਹਿੰਦੀ, ਕਦੇ ਪਾਨ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ, ਕਦੇ ਮਾਚਸ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਮਾਚਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਠੀਆਂ 6 ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਾਚਸਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗੀ ਪਈ। अरे बिटिया, 6 इकट्ठी दे दूंगी तो फिर मुझे एक और बंडल खरीदने के लिए शहर जाना पड़ेगा, तुम अभी एक ही ले लो। तुम बहुत सा माल खरीद कर रखा करो अम्मा, इस तरह गाहकी बढ़ती है। अरे बिटिया, गाहकी बढ़ेगी तो क्या होगा, 2 जून रोटी खानी है और मैंने क्या करना है। तुम यहाँ बिल्कुल अकेली हो अम्मा। हाँ बिटिया, ईश्वर की तरह बिल्कुल अकेली हूँ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਝਲਕ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲਿੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰੇ 2 ਵਰ੍ਹੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੰਬੇ ਰਾਹ ਦਾ 1 ਮੀਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਰ ਲਿਆ। ਬਦਰੀਨਾਥ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਤੁਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मेरा नाम किसी ने नहीं रखा। जिंदगी में जब भी कोई घटना हुई, घटना ने खुद ही मेरा नाम रख दिया। एक घटना ने एक नाम रखा, दूसरी घटना ने दूसरा नाम रख दिया, तीसरी घटना ने तीसरा नाम रख दिया और चौथी। पहली घटना क्या थी अम्मा? मैं रंग की सांवली थी, इसलिए गली मोहल्ले के लोग मुझे काली माटी कहकर बुलाते थे। काली माटी? मेरी नानी को इस नाम से बड़ा गुस्सा आता था। वो काली सरसों पीसती और उसका उपटन मुझे मलती। जब मैं कुछ बड़ी हो गई तो रंग निखर आया। मेरी नानी ने मेरा नाम सांवली माटी रख दिया। फिर मैं नानी के पास ही रहती थी। जवान हुई तो मेरी नानी को ब्याह की चिंता हुई, पर वो मेरा ब्याह करने से पहले बद्रीनाथ की यात्रा करना चाहती थी। मैं उसके हाथ की लाठी थी, वो मुझे साथ लेकर बद्रीनाथ चल दी।
वहाँ वहाँ रास्ते में बहुत नदियाँ पड़ती है। एक नदी का नाम था अलकनंदा। और भी यात्री थे। एक यात्री मेरी नानी का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन जब हम सब लोग अलकनंदा में नहा रहे थे तो उस यात्री ने मेरा नाम अलकनंदा रख दिया। नाम तो बहुत अच्छा है। आगे जाकर एक और नदी आई, उसका नाम था भीलगंगा। जाने उसको क्या सूझी, उसने अलकनंदा से बदलकर मेरा नाम भीलगंगा रख दिया। मेरी नानी भी मुझे भीलगंगा बुलाने लगी, शायद इसलिए कि वो यात्री मेरी नानी की बहुत सेवा करता था। रास्ता चलते चलते मेरी नानी के पैरों में सूजन आ गई थी। रात को जब हम लोग किसी चट्टी में ठहरते तो वो यात्री गर्म पानी से में नमक डालकर मेरी नानी के पैर धो देता। इसलिए मेरी नानी को बहुत अच्छा लगता था। वो केवल तुम्हारी नानी को अच्छा लगता था? बताती हूँ। तुम उससे क्या कहकर आवाज़ देती थी? यही तो मुझे पता नहीं चलता था कि मैं उसे क्या कहूँ। कुछ बड़ी उम्र का होता तो दादा कह लेती। जवान था, जवानी भी अभी आई थी और जाने कहाँ से आई थी। फिर रास्ते में काली कंबली वाले का मंदिर आया तो मुझे उसका नाम सूझ गया। मैं उसे काली कंबली वाला पुकारने लगी। यूं भी उसने अपना मोटा कंबल कंधे पर डाला हुआ था। काली कंबली वाला और भीलगंगा। फिर तो एक नियम सा बन गया, जब कोई नदी और आती तो वो मेरा नाम बदल देता। पीपल कुंठी में गरुड़ गंगा बहती है, वहाँ पहुंचकर उसने मेरा नाम गरुड़ गंगा रख दिया। उससे 4 मील आगे पाताल गंगा बहती है, उसने मेरा नाम फिर पाताल गंगा रख दिया। इस तरह मेरा नाम कर्मनाशा भी हुआ, गोमुखी धारा भी, नमो धारा भी हुआ, दंड धारा भी, राम गंगा भी, विष्णु गंगा और आकाश गंगा भी। पर अम्मा, तुमने उसका नाम ना बदला, वही काली कंबली वाला रहने दिया। जवानी मुझे भी तो आई थी बिटिया, मन बहुत चंचल हो रहा था। हम जहाँ भी रात को जिस चट्टी में ठहरते मैं उसका वही नाम रख देती। कभी व्यास घाट उसका नाम रखा, कभी देवप्रयाग, कभी रामबाड़ा, गुप्ता काशी, रसिया मठ, कमलेश्वर, कर्णग, नलायाश्रम, गौरीकुंड, जाने कितने उसके नाम रखे। फिर नदियाँ जाने कहाँ से आती हैं, कहाँ जाती हैं। बात भी जाने कहाँ से शुरू हुई और कहाँ चलेगी। नानी के पैरों में बहुत सूजन हो आई थी। वहाँ रास्ते में कांडी वाले मिलते हैं और कुछ पैसे लेकर यात्रियों को अपने कंधों पर उठा लेते हैं। नानी के लिए हमने कांडी का बंदोबस्त कर दिया, पर मुझे नानी की तरह कांडी में बैठकर जाना बहुत बुरा लगा। मेरे पैरों में भी छाले पड़ गए थे, पर कांडी में बैठने वाला सवारी नहीं करता, किसी के कंधों का बोझा होता है। तो काली कंबली वाले ने मेरे लिए और अपने लिए घोड़े का बंदोबस्त किया। हम अपने अपने घोड़े पर सवार होकर साथ साथ चलते रहे। फिर सब मिलाकर वहाँ 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रियुगी नाथ और तुंगनाथ। चलते घूमते भटकते रास्ता जैसे जैसे खत्म होता गया वो काली कंबली वाला उदास होता गया। मुझे कहने लगा कि वो सन्यासियों की तरह गेरुआ रंग के वस्त्र पहन लेगा। क्यों? उस वक्त मैंने उसकी बात का भेद नहीं समझा। उससे हंसी करती रही कि फिर वो दुनिया का और कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ गांजा पिएगा। हमारे साथ जो और यात्री जा रहे थे उनमें कुछ सन्यासी भी थे। देख रही थी कि उन लोगों को किसी के दुख सुख से कोई मतलब नहीं था। वो बस चिलम पीते थे और ओम नमो नारायण की रट लगाते थे। फिर रास्ते में एक सन्यासिनी मिली, सिर पर जटाओं की लंबी वेणी, वस्त्र गेरुआ रंग से रंगे हुए, गले से रुद्राक्ष की मालाएं, एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में शंख। काली कंबली वाला रुआंसा होकर मुझे कहने लगा कि मैं सन्यासन बन जाऊं। बात ये थी कि उसकी शादी हो चुकी थी, घर में बच्चा भी था। मुझे पाने के लिए अब जिंदगी का कोई रास्ता उसके पास नहीं था। अब उसने मेरा नाम कपाल कुंडला रख दिया था, समझी। रास्ते में संगमरमर के पर्वत आए। लोग संगमरमर के बुत बनाते हैं, पर मुझे लगा मेरा बुत हमेशा के लिए टूट गया है, तो अब यह संगमरमर के सारे पर्वत मिलकर भी मेरे लिए एक बुत नहीं बना सकते। अम्मा, तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी बिटिया। जब मन का द्वार खोल ही दिया, छुपाने को कुछ है ही नहीं। बद्रीनाथ पहुंचकर लोग अपना अपना माथा झुका रहे थे, पाप का प्रायश्चित कर रहे थे, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि लोग पाप पहले करते हैं, उसकी सजा बाद में पाते हैं, पर मैंने तो पाप करने से पहले ही सजा पा ली थी।
पाप करने की तो अभी बारी नहीं आई थी। माथा किसके सामने झुकाती, प्रायश्चित किस पाप का करती। लोग तो पुण्य के लोभ से आए थे, मैं किस चीज का लोभ करती। पुण्य के नाम पर जो पूंजी थी वो तो मेरे हाथ लगाने से पहले ही लुट चुकी थी। अम्मा, गेरुआ वस्त्र तो तुमने ना पहने, पर सन्यासिनी तो तुम हो गई। रास्ते में भोजपत्रों के पेड़ों का जंगल आया था। जानती हो, भोजपत्रों पर कभी लोग चिट्ठियां लिखा करते थे। मैं पेड़ों की ओर देख रही थी और सोच रही थी कि जंगल के ये सारे भोजपत्र मिलकर भी मेरे मन की एक चिट्ठी नहीं लिख सकते थे। जानती हो, नारी की तपस्या बंधन में है और मर्द की त्याग में। समझती हूँ, बंधन चाहती थी, किस्मत में नहीं था, इसलिए त्याग का रास्ता पकड़ा। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा एक नाम गरुड़ गंगा भी था। हाँ अम्मा, कहते हैं कि गरुड़ गंगा में से अगर कोई पत्थर का एक टुकड़ा उठा कर ले आए, उसकी पूजा करे, तो फिर जिंदगी भर उसे सांप का डर नहीं रहता। मैंने अपने सभी नाम भुला दिए, बस एक ही याद रखा, गरुड़ गंगा। तब से अब तक मैं गरुड़ गंगा हूँ। मुझे किसी सांप का डर नहीं। मानती हूँ एक बार मोहब्बत का नाग मुझे काट गया था, पर मैंने अपने मन को उसका जहर नहीं चढ़ने दिया। नाग की मणि को निकाल कर धारण कर लिया और नाग को छोड़ दिया। और भी बहुत से सांप काटने को आए। अकेली औरत की जवानी में जाने कैसी गंध होती है। वासना के सांप उसके इर्द गिर्द मंडराते हैं, पर किसी सांप की मजाल नहीं हुई कि मुझे छू सके। जो बंधन चाहा वो नहीं मिला, तो फिर मुझे कोई और बंधन नहीं चाहिए था। नानी ने भी कभी जिद ना की। एक विश्वास को साथ लेकर इस दुनिया से गई। माँ बाप भी आगे पीछे इस दुनिया से चले गए। बहन भाई कोई नहीं था। कुछ लोगों ने तर्स के नाम पर कुछ देना चाहा, पर जानती हो, तर्स का जहर भी बुरा होता है। तन तो जिंदा रहता है, पर इसके जहर से मन नहीं बचता, इसलिए इससे बची हूँ। गरीबी का काला नाग भी बुरी तरह से काटता है। काट जाए तो इंसान पानी नहीं मांगता, दम तोड़ देता है। पर गरुड़ गंगा हूँ, मुझे इस नाग ने भी कभी कुछ नहीं कहा। मैं गरुड़ गंगा वल देखती रही। याद आया, उन्हें कदी मैनू आख्या सी, मैं अकेली हूँ, ईश्वर की तरह अकेली। मैं ईश्वर दे मूँह वाल अज तक कदे नहीं वेख्या, पर गरुड़ गंगा दे मूँह वाल किन्ना चिर वेखदी रही। कुछ चिर पिछों सिर्फ इन्ना पूछ सकी, अम्मा, बद्रीनाथ से लौटते हुए तुम काली कंबली वाले से हमेशा के लिए बिछड़ गई। हाँ बेटिया, इस जन्म में तो बिछड़ ही गई। बिछड़ने के वक्त उसने बहुत कुछ कहना चाहा, पर सुनने के लिए अगर मैं अपने कानों को इजाज़त दे देती तो उसका घर बाहर उजड़ जाता। मैं सारा रास्ता चुप रही। वो मेरी ओर देखता और करुणमुखी कहकर आवाज़ देता। शायद मैं बहुत ही उदास दिख रही थी, पर मैं चुप थी। वो जाते हुए रुआया सा होकर कहने लगा, मौनमुखी कुछ तो बोलो। मौनमुखी, लोग एक आध दिन के लिए मौन रखते हैं, पर मेरे लिए तो यह व्रत उम्र भर का था। जान गई थी, इसलिए कुछ नहीं बोली। मौनमुखी थी, अब भी हूँ, पर मन में धार लिया था कि गरुड़ गंगा ज़रूर बनूंगी। उसी के बल से जी रही हूँ, नहीं तो इस दुनिया में जाने कितने सांप हैं। मैं बद्रीनाथ की यात्रा कदे नहीं की, पर गरुड़ गंगा ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਦਰੀਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣ। ਧੰਨਵਾਦ।